سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل واسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في البطر من العشر الأواخر من رمضان. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق سجاوار ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد تمام مخلوقات پر اپنی نعمتوں کو دیا. اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بہت سارے انعامات
اور احسانات سے نوازا۔ سامعین کرام، جہاں اللہ رب العالمین نے ہماری بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے، زندگی کے ایام کو گزارنے کے لیے جہاں ایک طرف ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، تو وہیں دوسری طرف اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اور جنت الفردوس پانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبیوں کو بھیجا، بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ نبیوں کا مقصد، رسولوں کا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور لوگوں کو دنیا کی گندگیوں سے اور دنیا کی برائیوں سے روکیں۔ یہ نبیوں کا مقصد تھا۔ آخری نبی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ رب العالمین کا پیغام اپنی امت تک پہنچا گئے۔ سامعین کرام، آج کا موضوع خطابت آخری عشرہ، لیلۃ القدر کی اہمیت، فضیلت اور اعتکاف کے مسائل۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ مبارک مہینہ دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور شیاطین کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے، اور آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی خیری اقبل یا باغی شرری اکثر، کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیکیوں کے کرنے والے، اے اطاعت گزار بندے، تو بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جا۔ اے نمازوں کے پابند، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے اور نیکیوں میں تمام لوگوں سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، تو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ جا۔ یہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگتا ہے۔ وہیں یہ بھی آواز لگاتا ہے، یا باغی شر اکثر، اے برائی کے چاہنے والے، اے برائیوں کے مگن رہنے والے اور برائیوں کو انجام دینے والے، برائی سے نہ رکنے والے، تو اب برائی سے رک جا۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے ایسے ہی نہیں ہے۔ جہاں شرکت شیاطین کو قید کر دیا جانا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ان شیطانوں کو قید کر دیتا ہے جو ہمیں نیکی کے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ ہماری بڑی محرومی اور بدنصیبی ہوگی کہ ان ساری چیزوں کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو برائیوں سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ ہم بڑے بدنصیب ہوں گے اگر ہم وہ برائیاں جو ہم پہلے کرتے تھے ان سے آزاد نہ ہو سکے۔ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم دنیا کی جو برائیاں تھیں ان کو رمضان کے مہینے میں چھوڑ نہ سکے۔ ہمارے لیے بہت ہی بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم دنیا کی عیش و پرست کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکے۔ شیطانوں کا قید کر دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور جنت کے تمام دروازوں کا کھول دیا جانا، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اس چیز کی برکت اور اس چیز کی برکت ہم اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے تو اس ہم سے بڑا بدنصیب، ہم سے بڑا محروم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بابرکت مہینہ تھا، یہ مبارک مہینہ تھا جو ہم سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں کیا حاصل کیا؟ کتنی نیکیوں میں ہم دوسروں سے سبقت لے گئے، کتنی نیکیاں ہم نے کر لی، کتنی نمازیں ہم نے ادا کر لی، کتنی نوافل کی ادائیگی ہم نے کر لی، اور
कितने सदका खैरात, कितने यतीमों को हमने सहारा दिया, कितने गरीबों की हमने मदद की, और वो नवाफिल जो नमाजों के दरमियान पढ़े जाते हैं, कितने हमने नवाफिल की अदायगी की। इस रमजान मुबारक के महीने में कितने हमने कलामुल्लाह की तिलावतें की, कितनी हमने कुरानी आयतों पर अमल किया, कितनी हमने इस बाबरकत मुबारक महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल किया। सामीन किराम, इस चीज को हमें याद रखना चाहिए कि यह महीना धीरे धीरे हमसे रुखसत हो रहा है और आखिरी अशरा लैलतुल क़द्र का अशरा है, उसमें हम दाखिल हो रहे हैं। हमें यह मालूम नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 17वें पारे के अंदर फरमाया, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून। लोगों को क्या हो गया है, ऐसी कौन सी हालत लोगों पर टूट पड़ी है, लोग कौन सी गफलत में पड़े हुए हैं और उनका अजले मुकर्रर, वक्त मुकर्रर उनके सर पर खड़ा है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, उनके हिसाब का वक्त आ चुका है। कयामत की बहुत सारी निशानियां जाहिर हो चुकी है, कयामत की बहुत छोटी छोटी निशानियां हमारे सामने जाहिर हो चुकी है। जल्द जल्द जल्जलों का आना, मुसलमानों पर ताबेइयों का टूट पड़ना, मुसलमानों को इस दुनिया से नेस्तनाबूद करना, मुसलमानों की मसाजिदों और उनकी इबादत गाहों पर टूट पड़ना, ये मेरे भाइयों क़यामत की निशानियां, छोटी निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी चीज को कहा, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून। लोगों को हो क्या गया है कि वो इस दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, इस दुनिया की जिल्लत और रुसवाई में पड़े हुए हैं। वो लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। मुसलमानों पर कौन सी तबाही नहीं आई मेरे भाइयों, फिलिस्तीन के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। अगर हम इन सारी जुल्म ज्यादती के बाद भी अगर हम नहीं सुधर पाए तो इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई हमारी क्या हो सकती है। वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनके लिए कितनी दुआएं की। मासूम बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, उनकी चीखें अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमान तक जा रही हैं। कौन उनको सुनने वाला है, कौन उनके लिए दुआएं करेगा? वो हमारे मुसलमान भाई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अगर किसी मुसलमान को जर्रा बराबर भी अगर नुकसान पहुंचता है, उसको तकलीफ होती है, दूसरे मुसलमान का जिस्म उससे थर्रा जाना चाहिए, कपकपा जाना चाहिए, हमारे जिस्म पर झुर्रियां चढ़ जानी चाहिए। हम जब उन हालात को देखें और ये सोचे किस तरीके से जुल्म ज्यादती हो रही है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन लोग अब भी दुनिया की ऐशोपरस्त में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे मुसलमान बच्चे हैं, हमारी मुसलमान बहनें हैं, हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। ये रमजान मुबारक का महीना हमने ऐशो इशरत में गुजार दिया। हमने नमाजों की जगह हमने गेम और इस तरीके की सारी चीजों में हमने अपने आप को गवा दिया। वो इबादत का वक्त जिसको हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाना चाहिए था, वो वक्त जिसको हमें कलामुल्लाह में लगाना चाहिए था, हमने उस वक्त को चौराहों पर, गलियों में और हसद, कीना, कपट और इस तरीके की गिबत, चुगलियां, इन सारी चीजों में अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। हमारी माएं बहनें हूं, चाहे हम हूं, अपने जिस्म का और अपने जहन का, अपने दिल का जायजा लीजिए। कितना हम या बागियल खैर अकबिल, कितना हम आगे बढ़ गए नेकियों में। फस्तबिकुल खैरात फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। होना तो ये चाहिए था, अगर हम वाकई मोमिन हैं, अगर हम वाकई मोमिन हैं, होना तो ये चाहिए था कि हम नेकियों में आगे बढ़ जाएं, हम दूसरों से सबकत ले जाएं। लेकिन हम रमजान मुबारक का जैसा महीना पाकर भी अपने आप की बख्शिश ना करवा सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिल्लत और रुसवाई और बहुत बड़ी महरूमी है। हमारे लिए बहुत बड़ी महरूमी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की देखभाल ना कर सके। हमारे लिए बड़ी महरूमी है कि हमारे मुआशरे में रहने वाले यतीम गरीबों की हम मदद ना कर सके। हमारे लिए बहुत बड़ी महरूमी और बदनसीबी है कि इस माह मुबारक का महीना पाकर भी हम मुसलमान भाई के भाई नहीं हो सके, हम सगे भाई के भाई नहीं हो सके, हम सगी बहन के भाई नहीं हो सके, हम माँ बाप के एक लाडले और प्यारे बच्चे नहीं बन सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी महरूमी है। मेरे भाइयों, ये बाबरकत महीना है, जब हम इसमें अपनी बख्शिश नहीं करवा पा रहे हैं और महीनों में हम क्या कर पाएंगे। शैतानों का कैद कर दिया जाना कितनी बड़ी बात है। वो शैतान जो हमें राह रास्ते से पूरी साल भटकाते रहते हैं, वो शैतान जो हमें नेकियों के रास्तों से मोड़ते रहते हैं,
وہ शैतान जो हमेशा हमें बुराइयों की तरफ रग़बत दिलाते हैं, उसके बाद भी उनका कैद कर दिया जाना, उसके बाद भी हम अपनी बख्शिश नहीं करवा पा रहे हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में नहीं आ सक रहे। हम वो मसाजिद जिनको आबाद करना चाहिए था, हम उन मस्जिदों को वीरान किए हुए हैं। इस माह मुबारक में भी अपने मुसलमान भाइयों का जायजा लीजिए, किस कदर उन पर जुल्म हो रहा है, हमें फिर भी दर्द नहीं है। अल मुस्लिम अखल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, अगर उसके एक कांटा भी छुए दूसरे मुसलमान को कपकपा और थरथरा जाना चाहिए। लेकिन हमारा हाल कैसा है? हमारे हालात पर गौर कीजिए तो हमें शर्म आती है, हमें अपने अमाल पर गैरत और शर्मिंदगी होती है कि ऐसे हालात में भी जब मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा हो, उन हालात में भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ना हो सके, उन हालात में भी हम अपनी मसाजिद को आबाद ना कर सके। ऐसे हालात जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा हो, जब मुसलमानों की मस्जिदों को वीरान किया जा रहा हो, मुसलमानों की मस्जिदों में और मदरसों में ताले लगाए जा रहा हो, मुसलमानों के मस्जिदों और मदरसों को फंड बंद किया जा रहा हो, ऐसे हालात में भी अगर हम अपने आप को, अपने अमाल को सुधार ना सके तो इससे बड़ी महरूमी और हमारी कोई हो ही नहीं सकती। अपने उन मुसलमान भाइयों का जायजा लीजिए। आप अगर उन मासूम बच्चों की वीडियो देखेंगे, आपका जिस्म कपकपा जाएगा। उन मुसलमान भाइयों के लिए क्या दुआ करेंगे? हम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस माह मुबारक महीने में इबादत नहीं कर सक रहे हैं, उन मासूम बच्चों के लिए क्या दुआएं करेंगे? जो मासूम बच्चे बिलक बिलक कर रहे हैं, उनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रुखसत और प्यारे हो जा रहे हैं। इस कदर संगीन मुसलमानों के लिए हालात हो। पूरी दुनिया का जायजा लीजिए, हिंदुस्तान हो चाहे हिंदुस्तान के अलावा हो, मुसलमानों पर इस कदर जालिम टूट पड़े हैं, इस कदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है कि हम उसका जायजा नहीं ले सकते, हम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। ऐसे हालात में भी हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, जो नमाजें हमारे ऊपर फर्ज है, जो ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है, हम उनकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। नवाफिल और इबादतों का हम क्या इत्माम करेंगे? सामईन किराम, ये रमजान धीरे धीरे हमसे रुखसत हो रहा है और हम आखिरी अशरे में दाखिल हो रहे हैं। बड़े खुशनसीब है वो लोग, बड़े खुशनसीब है वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अज़कार करते चले आए। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो इस रमजान मुबारक में तिलावतुल्लाह और कलामुल्लाह की तिलावत करते चले आए। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो इस माह मुबारक में लगातार नवाफिल की अदायगी करते रहे। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो इस माह मुबारक में लास्ट महीना है और रमजान बिल्कुल हमसे रुखसत हो रहा है, इस महीने में वो लोग सदका और खैरात में आगे बढ़ रहे हैं। बड़े खुशनसीब है। लेकिन वही बड़े बदनसीब है वो लोग जिन्होंने नवाफिल की अदायगी नहीं की। बड़े बदनसीब है वो लोग जो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा कर सके। बड़े बदनसीब है वो लोग जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ न कर सके। बड़े बदनसीब है वो लोग जो अपने फिलिस्तीन मासूम बहनों भाइयों और माँ बाप और मासूम बच्चों के लिए दुआएं ना कर सके। बड़े बदनसीब है वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिदों को आबाद ना कर सके। बड़े बदनसीब है वो लोग जो इस माह मुबारक में भी अपने आप की बख्शिश ना करा सके। बड़े बदनसीब है वो लोग जो अपने अमाल को दुरुस्त ना कर सके। बड़े बदनसीब है वो लोग जो साले अमाल करके जन्नतुल फिरदौस का अपने आप को मुस्तहिक नहीं बना सके। बड़े बदनसीब है वो लोग जो रोजेदारों के लिए एक जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, उस दरवाजे के लायक अपने आप को ना बना सके। बड़े बदनसीब है वो लोग। सामीन किराम, अपने आप का जायजा लीजिए, अपने नफ्स का जायजा लीजिए, मुसलमानों पर क्या हालात टूट रहे हैं और अपने आप को देखिए, उसके बाद अपने आप में सुधार लाइए। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने कुरान मजीद को ताक रातों में नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद हमारी ताकों में सजा कर रखा हुआ है, चाहे हमारे घरों में हो चाहे हमारी मसाजिद में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद को इन्हीं शब कदर की रातों में नाजिल किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जानते हैं लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सवाल किया, लैलतुल क़द्र की अहमियत को जतला रहा है कुरान मजीद के अंदर कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, आप क्या जानते हैं लैलतुल क़द्र है क्या?
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र जिसमें इंसान इत्काफ करता है, लैलतुल क़द्र जिसमें लोग रातों रात जागते हैं, लैलतुल क़द्र जिसमें लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से रात के आखिरी पहर में लो लगाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बख्शिश करवाते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये इसमें फरिश्ते नाज़िल होते हैं। ये 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। आप ये सोचिए, 1000 महीनों की इबादत आप जानते हैं 83 साल 4 महीने, 83 साल 4 महीने, 1000 महीने 83 साल 4 महीने। आप सोचिए हमारी उम्र भी इतनी नहीं होती है। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र है क्या, ये आपको क्या मालूम? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत से ये इबादत और ये रात बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का हो जाए, जो शख्स इन रातों में जाग जाग कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से न लगाए, जो शख्स इन रातों में जाग जाग कर अपने जुल्म सितम और मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करे, वो शख्स जो इन रातों में जाग जाग कर रोए गिड़गिड़ाए और अपनी उम्मत के लिए तरसे, अपने भाइयों के लिए तरसे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करे, वो शख्स इन 1000 महीनों की इबादत को पालेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कामा रमजान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स भी लैलतुल क़द्र में जागता है, जो शख्स भी लैलतुल क़द्र में इबादत करता है, जो शख्स भी लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद की तिलावत करता है, जो शख्स भी लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी बख्शिश कराता है, तो मन कामा रमजान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके तमाम तर गुनाहों को माफ कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। 1000 महीनों की इबादत, उसका सवाब अलग, अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछले गुनाह माफ कर दे, इसका सवाब अलग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तहर्रु लैलतुल क़द्रि फिल वित्री मिनल अश्र अवाखिर, लैलतुल क़द्र को तुम तलाश करो आखिरी अशरे की ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। हमारा मामूल क्या है? लैलतुल क़द्र में हम क्या करते हैं? मुसलमान सोसाइटी और मुसलमान मुआशरे का जायजा लीजिए। लैलतुल क़द्र के अंदर आप देखिए, लोग शॉपिंग अलग करते हैं, लोग चौराहों पर गेम जैसी चीजों को खेलते हैं, लोग जुआ और ताश जैसी चीजों को लैलतुल क़द्र में आम कर देते हैं। ये जागने की रातें हैं मेरे भाइयों, ये चुगली, हसद, कीड़ा कपट, लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीजें हमारे मुआशरे में आम है। खाना पीना, इसी चीज पर हमारा बसर और गुजर हो रहा है। मुसलमानों, मोमिनों, अपने हालात का जायजा लीजिए और सोचिए हम गुमराही के किस गड्ढे पर आ चुके हैं। ये रातें इबादत की रातें होती हैं और हम खाने पीने और सोने में गुजार रहे हैं। किस तरीके के हालात हमने अपने मुआशरे में बना चुके हैं। इतने जुल्म सितम के बाद भी हम अगर अपने आप को ना सुधार पा रहे हैं, इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है। इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद भी, इतनी मसाजिदों को वीरान करने के बाद भी, इन मसाजिदों और मदारसों में ताले लगने के बाद भी हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं, इससे बड़ी बदनसीबी, महरूमी क्या हो सकती है। हम इबादतों को छोड़कर हम सोते हैं, हम इबादतों को छोड़कर हम गलियों में और इस तरीके के मुस्लिम चौराहों पर हम घूमते हैं। हम इबादतों को छोड़कर और हम उस वक्त को जाय कर तिलावतुल कलामुल्लाह को छोड़कर, कुरान मजीद की तिलावत को छोड़कर अपनी ऐशो परिस्थिति की जिंदगी में हम मगन रहते हैं। आखिर वो वक्त कब आएगा, हमारी उम्र का वो वक्त कब आएगा जब हम अपने आप को सुधारेंगे। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। मेरे भाइयों, फरिश्ते इन रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो फरिश्ते जो दुनिया के अंदर कामों में मशगूल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर फरिश्ते को अपने काम में मशगूल रखा है। कोई बारिश बरसाने का फरिश्ता है, तो कोई रोजी देने का फरिश्ता है, कोई मौत निकालने वाला फरिश्ता है, तो कोई बच्चों की पैदाइश का फरिश्ता है। इन रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तरह अहकामात अपने फरिश्तों को देता है। पूरी साल में हमारे यहाँ क्या होने वाला है, अगली साल कहां बारिश होगी, कहां नहीं होगी, किस शख्स को रोजी देना है, किस शख्स को रोजी देना है, किसका इंतकाल होगा, किसकी पैदाइश होगी। इन लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम कामों को इन फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। वो फरिश्ते आसमानी दुनिया पर लौह महफूज में उतरते हैं और लौह महफूज से
زمین پر آتے ہیں یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے جب فرشتے آتے ہیں. آپ سوچئے یہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو سوچئے. لیلۃ القدر کا نام صرف اس وجہ سے پڑا کیونکہ لیلۃ القدر یہ احترام والی رات ہوتی ہے, یہ احترام والی رات ہوتی ہے, عبادت گزار رات ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی پڑا کیونکہ لیلۃ القدر میں وہ ہماری جو تقدیریں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں وہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین دیتا ہے. اور پوری سال میں ہمارے سامنے کیا ہوگا, ہماری زندگی میں پوری سال میں کیا ہونے والا ہے, ان ساری چیزوں کا حساب اللہ رب العالمین ہر فرشتے کو جو جس کام کے لیے فرشتہ مقرر ہے ان لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کو ان کاموں کے لیے مقرر کر دیتا ہے. جس طریقے سے ایک فرشتہ کسی کا انتقال یا کسی کی پیدائش یا کوئی فرشتہ جو بارش برسانے کے لیے ہے یا کوئی فرشتہ جو روزی دینے کے لیے ہے, ان سارے احکامات کو اللہ رب العالمین انہی لیلۃ القدر میں رکھ دیتا ہے. میرے بھائیوں, جہاں تک اعتکاف کا مسئلہ ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کی اعتکاف کے لیے شرط ضروری ہے کہ انسان مساجد کے اندر ہی اعتکاف کرے. اور اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دنیا کی لہو لعب جیسی چیزوں سے بالکل دور رہے, ضرورت کے وقت انسان سے بولے اور باتیں کرے اور باقی چیزوں سے اپنے آپ کو جو ختم کر دے. اسی طریقے سے اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہو جائے اور پوری رات مساجد کے اندر ہی عبادت کرے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے. یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مساجد ہی کے اندر اپنے آپ کو روک لے اور پوری رات اللہ رب العالمین کا قیام کرے, عبادت کرے, نوافل کی ادائیگی کرے, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے اور فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے. سامعین کرام, اعتکاف کرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ دنیا کی تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کی زبان, اس کے ہاتھ پاؤں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں. جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ چغلی سے محفوظ رکھتا ہے. جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ حسد, کینہ, کپٹ ان ساری برائیوں سے دور رہتا ہے. جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہو جاتا ہے. جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے محبت ہو جاتی ہے. جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو کلام اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو دنیا کی تمام تر برائی, حرام اور بے فضول کی چیزیں لگتی ہیں. جو شخص بھی اعتکاف کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مساجد ہی کے لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول, اللہ کے کلام اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حدیثوں سے اس شخص کو محبت ہو جاتی ہے. یہ اعتکاف کرنے والے کی فضیلت ہے. اعتکاف کرنے والا اس کو صرف ذہن میں یہی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مساجد ہے, اس میں عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. موبائل جیسی چیزیں, سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائیے. یہی چیزیں آپ کو برباد کر دے رہی ہیں. آپ کی جو عبادت کے وقت تھے 17-18 رمضان ہو گئے, ہم نے کتنی عبادتیں کی, ہم نے کتنا اللہ رب العالمین کو لو لگایا, ہماری بیویوں نے کتنی اللہ رب العالمین سے دعائیں کی, کتنا کلام اللہ کی تلاوتیں کی. اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے, اپنی مسجدوں میں جائزہ لیجئے. یہ قرآن جو پوری سال مسجد کے اندر طاقوں میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے یہ طاقوں میں سجا کر رکھے رہتے ہیں. کتنے مسلم معاشرے کے لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں آتا. میرے بھائیوں, کتنی بار یہ اعلان کیا بھی جاتا ہے کہ انسان کو قرآن اگر نہیں آتا اس کو سیکھنا چاہیے. کل قیامت کے دن ہمارا کیا حاصل ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو ہم کیا دکھائیں گے؟ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں, عبادت ہمارے صحیح سے نماز یاد نہیں ہے, آخر ہم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو حساب دیں گے؟ کون سے اعمال ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑے ہوں گے اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم جواب دیں گے؟ اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں, خاص طور پر باقی تمام دنوں میں صحابہ کرام, سلف صالحین, ائمہ اور تابعین, تمام تر لوگ تمام مہینے میں بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے, لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو اور زیادہ وہ لوگ محنت کرنے لگتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بالکل تیار رکھ لیتے تھے اعتکاف کے لیے, لیلۃ القدر کی عبادت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بالکل تیار رکھ لیتے تھے اور اس آخری عشرے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محنت نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ معلوم ہے کہ رات کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے
मन यदऊनी फस्तजीब लहू, कोई शख्स है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। मन यसअलनी फऊतियहू, कोई शख्स है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको दूं। कोई शख्स है जो रिस्क तलब करे मैं उसको रिस्क दूं। कोई शख्स है जो औलाद तलब करे मैं उसको औलाद दूं। कोई शख्स है जो अपने आप को अपने घर वालों को बाबरकत और मुबारक बनाना चाहता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के आखिरी अशरे में सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर आ जाता है और ये अपने तमाम बंदों से ऐलान करता है, जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का होकर होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको दुआएं कबूल करता है। और हमें ये चीज मालूम है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल करता है तो उस दुआ के 3 फवायद हैं। पहला फायदा ये होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर दुनिया में हमें वो चीज नहीं देता तो कल क़यामत के दिन मरने के बाद उसका बदला देगा। दूसरी चीज, हम जिस चीज की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन वही दुआ हमारी कबूल कर लेता है और वही चीज हमें अता करता है। तीसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम जो दुआएं करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें वही चीज नहीं देता लेकिन उससे बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करता है। लेकिन सवाल करने वाला हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से इबादत करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करने वाला हो। वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई, कि जब कोई सवाल करने वाला मुझसे सवाल करे तो कह देना मैं उसके बिल्कुल करीब हूं। हम जब सजदे में होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे ज्यादा करीब हमसे कभी नहीं होता। हम नवाफिल की अदायगी करें, सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे करीब सजदे में होता है इससे ज्यादा करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कभी नहीं होता। इसीलिए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते थे, गिड़गिड़ाते थे, नवाफिल की अदायगी करते थे, अपनी उम्मत के लिए रोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी, इतना अपनी उम्मत के लिए रोते थे। नबी का कोई गुनाह नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनाह नहीं था, मासूम अनिल खता थे, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, अपनी उम्मत की बेहतरी के लिए रोए हैं। आज हम हैं, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, हम जुल्म और तशद्दुद की और दीवारें खड़े कर रहे हैं, हम इख्तिलाफ, इंतशार, हसद, गीबत, चुगली, चौराहों पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों का मजाक उड़ाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नवाफिल का मजाक उड़ाना, यह सारा हमारा वतीरा और तरीका बन चुका है। आखिर कब हम अपने आप को बदलेंगे? वो कौन सा वक्त होगा जब अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए खास करेंगे? ये दौर ऐसा दौर है जहां मुसलमानों पर सिर्फ जुल्म और सितम के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप मुसलमानों की हर एक शोशे और हर एक गोशे का आप जायजा लीजिए और देखिए कौन सा ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा रास्ता जालिमों ने, जालिम हुक्मरानों ने हमारे लिए छोड़ा है कि जिसकी वजह से हमें निजात मिल जाए। कोई ऐसा रास्ता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हो जाइए। ये आखिरी अशरे में जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतें करते थे उस तरीके से इबादत कीजिए। और खास तौर पर अपने मासूम बच्चों के लिए, अपनी माओं के लिए जो फिलिस्तीन के अंदर जिनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं, जो चीख चीख कर, बिलक बिलक कर इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं, कितने मासूम ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके और कितने मासूम ऐसे हैं जो अभी लटके हुए हैं अल्लाह और उसके रास्ते के बीच में, वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं कीजिए और ये दुआ तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा जब हम अपने अमाल के एतबार से मजबूत होंगे। हमारी दुआएं उसी वक्त कबूल होंगी जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खुलूसुलिल्लाहियत जैसी चीजों को अदा करेंगे। अगर हम इसी तरीके से, जिस तरीके से आज हमारी मस्जिदों के हाल बने हुए हैं, और इसी तरीके से अगर बनते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, रोजे का मकसद भूखों प्यास नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। हम जो रोजे का मकसद सोना और खाना पीना बना चुके हैं, ये रोजे का मकसद नहीं है। रोजे का मकसद इबादत करना, रोजे का मकसद तिलावत कलामुल्लाह करना, रोजे का मकसद जिक्र व अस्कार करना, रोजे का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाना, रोजे का मकसद गालियों से दूर रहना, रोजे का मकसद लड़ाई झगड़े से दूर रहना, रोजे का मकसद हमें अपने आप को, और जो शख्स भी बुराइयों में कर रहा है, वो शख्स जो बुराइयों में मगन है उसको अपने उससे रोकना। रोजे का मकसद लोगों को नेकी का हुक्म देना, लोगों का मकसद नेकी के रास्ते पर लोगों को गामजन करना, यह है रोजे का मकसद। हमने जो रोजे का मकसद सोना और खाना पीना बना चुका है, यह रोजे का मकसद नहीं है। मेरे भाइयों, तकवा और परहेजगारी तभी है
تبھی ہم روزے کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو جائیں. اپنے آپ کو سدھاریے اور خاص طور پر فلسطینی ماؤں بہنوں اور بچوں کے لیے دعائیں کیجیے. اور ہماری حکومت جو ہم پر ہندوستان کے اندر ظلم کر رہی ہے، اپنے آپ کو، اپنے انتشار کو، اپنی علامتوں کو جو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کیجیے. اگر ہماری مسجدیں ختم ہو گئی، اگر اس طریقے سے بڑی بڑی مسجد اقصی، فلسطینی مسجد اور ان ساری چیزوں کو اگر ختم کر دیا گیا تو ہمارے اندر جو تھوڑی بہت ایمانی غیرت بچی ہے وہ بھی ہم سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگ ہمارے گھروں میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو ظلم کرنا شروع کر دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں ان کو بخش دے. اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کو قبول کر لے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول کر لے. اللہ رب العالمین ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین تو ہی غفور رحیم ہے، تیرے علاوہ کوئی غفار نہیں ہے. ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. وآخر الدعوانا